রাহুল গান্ধী বলেছেন এই নির্বাচন আদর্শের নির্বাচন। একদিকে আরএসএস এবং বিজেপি সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে ইন্ডিয়া জোট এবং কংগ্রেস পার্টি গণতন্ত্রকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। নির্বাচনে দু তিনটি বড় ইস্যু আছে, এর মধ্যে বেকারত্ব সবচেয়ে বড় ইস্যু, এছাড়া মুদ্রাস্ফীতি দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্যু। কিন্তু বিজেপি বিভ্রান্তি তৈরি করতে ব্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী বা বিজেপি কেউই ওই দু বিষয়ে কথা বলেন না। এদিকে বিজেপি এবার কটা আসনে জিতবে বলে রাহুল মনে করেন। কংগ্রেস নেতা বলেন, আমি সাধারণ আসন সংখ্যা নিয়েও কোনো ভবিষ্যৎবাণী করি না, তবে 15-20 দিন আগে আমি ভাবছিলাম বিজেপি প্রায় 180টি আসনে জিততে পারে গোটা দেশে। তবে এখন আমার মনে হচ্ছে বিজেপির আসন সংখ্যা 150-এ নেমে আসতে পারে। আমরা প্রায় সব রাজ্য থেকেই গ্রাউন্ড রিপোর্ট পাচ্ছি, সেখানে আমাদের উন্নতির ইঙ্গিত মিলছে। আমরা উত্তরপ্রদেশেও ভালো ফলাফল করব। এদিকে সাম্প্রতিক সময় মোদির একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী এক সংবাদ সংস্থাকে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছে। এটি স্ক্রিপ্টেড ছিল, কিন্তু এটি ফ্লপ শো ছিল। এতে নির্বাচনী বন্ড ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থা আনা হয়েছে স্বচ্ছতার জন্য, রাজনীতি পরিষ্কার করার জন্য। যদি এটা সত্যি হয় তাহলে কেন এই ব্যবস্থা সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করলো? রাহুলের কথায়, আপনি যদি স্বচ্ছতা আনতে চান তাহলে যারা বিজেপিকে টাকা দিয়েছেন তাদের নাম কেন লুকিয়ে রাখলেন? আর যে তারিখে তারা আপনাকে টাকা দিয়েছে সেই তারিখগুলো আপনি কেন লুকিয়ে রেখেছিলেন? এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় চাঁদাবাজির স্কিম। ভারতের সমস্ত ব্যবসায়ীরা এটি বোঝেন এবং জানেন, এবং প্রধানমন্ত্রী যতই ব্যাখ্যা দিতে চান না কেন তাতে কোনো পার্থক্য হবেন না, কারণ সারা দেশ জানে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির চ্যাম্পিয়ন। মোদী সরকারকে তোপ দেখে রাহুল বলেন, গত 10 বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদী নোট বাতিলের মাধ্যমে ভুল জিএসটি প্রয়োগ করে এবং আদানির মতন বড় ধনকুবেরদের সমর্থন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিয়েছেন। আমরা সরকারে এলে সবার প্রথম কাজ হবে আবার কর্মসংস্থানকে শক্তিশালী করা। এর জন্য আমরা আমাদের ঘোষণাপত্রে 23টি ধারণা দিয়েছি। এদিকে কংগ্রেস নেতা আরও বলেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা উত্তরপ্রদেশের সমস্ত স্নাতক এবং ডিপ্লোমাধারীদের শিক্ষানবিশের অধিকার দেব, প্রশিক্ষণ হবে, এবং আমরা তরুণদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতি বছর 1 লাখ টাকা করে জমা দেব, এবং আমরা 1 কোটি যুবককে এই অধিকার দিচ্ছি। আমরা পেপার ফাঁসের ক্ষেত্রেও আইন করব। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के, वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई।
इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। पेपर लीक कितने हुए हैं? 1-2 होते तो ठीक था, लेकिन 10 पेपर लीक हुए। और मैंने कई मौकों पर वो बात बताई कि अगर एक परिवार के हम केवल 3 सदस्यों को मान लें, जिस व्यक्ति ने परीक्षा लिखने की तैयारी की, जो परीक्षा नहीं दे पाया पेपर लीक के कारण, और उसके माँ बाप को अगर हम जोड़ लें, तो ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और अगर 60 लाख का गुणा करें हम 3 से, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं से, तो भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट हर लोकसभा में कम हुआ है। इसलिए एक भी वोट बट ना पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। हाई न्यूज नेटवर्क।